Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, I Muhammad Abdul Habib welcome you all to AIMS tutorial for accounts. In this video, I'll be explaining the chapter preparation of final accounts, chapter 10 for intermediate first year students for Telangana State Board of Intermediate Education, page number 335, question number 9. From the following trial balance of Vinayaka Enterprises, prepare final accounts for the year ended 31st December 2018. The trial balance is given as trial balance as on 31st December 2018. Debit balances amount rupees, credit balances amount rupees. Here are some of the debit and credit balances given with some additional information, that is adjustments. The adjustments are given as closing stock 10,500, bad debts 1,500 and provision for bad and doubtful debts 5%, outstanding factory rent 400, depreciation on furniture 10%, interest received in advance 500, stock worth rupees 10,000, destroyed in fire, and insurance company admitted a claim of rupees 7,500. Let us solve the problem. Here we are preparing trading and profit and loss account of Vinayaka Enterprises for the year ended 31st December 2018, and the format is particulars amount rupees, particulars amount rupees. Towards extreme left we will be writing DR debit and towards extreme right we will be writing CR credit. Then we will be preparing balance sheet. The heading will be balance sheet of Vinayaka Enterprises as on 31st December 2018, and the format is liabilities amount rupees, assets amount rupees. How do we start trading account? First we will be writing opening stock. So opening stock is given in the question as 7,600. So opening stock will be written here as in trading account as to opening stock 7,600. Next, after opening stock we will be writing purchases. Here purchases is given as 12,400 and purchase returns will be given on opposite side, that is on credit side 400. So we will be subtracting purchase returns from purchases. So here purchases is taken as 12,400 less purchase returns 400. तो यहाँ पे आप purchases की वैल्यू लिखेंगे 12,400. इसमें से आपको क्या करना है, purchase returns के 400 रुपये subtract करना है. So subtracting 400 from 12,400, the amount which is left out is 12,000. फिर opposite side क्या करेंगे, हम sales की वैल्यू लिखेंगे. The value of sales is given on credit side as 28,500. इसमें इसके जो सेल्स रिटर्न्स रहेंगे वो अपोजिट साइड डेबिट में रहेंगे, सेल्स रिटर्न्स 1500. सो इसको कैसा लिखेंगे, सेल्स 28,500 माइनस सेल्स रिटर्न्स 1500. तो इस तरफ सेल्स है 28,500 जिसमें से अपने को रिटर्न्स माइनस करना है 1500. So 500 minus 500 it becomes 0, 28 minus 1 it becomes 27,000. Next we have closing stock. The value of closing stock is given as 10,500 which will be recorded on credit side of trading account. तो trading account के credit में लिखेंगे 10,500. साथ साथ इसको balance sheet के assets में बताएंगे closing stock 10,500. Here it will be shown as 10,500. नेक्स्ट परचेजेस 12,400 लिख दिया हम. फर्नीचर 8,000 है, इस पे एडजस्टमेंट है. देखिए डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 10%. तो फर्नीचर इट इज एन एसेट, तो फर्नीचर की वैल्यू क्या है 8,000 है. सो फर्स्ट इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन एसेट साइड एज फर्नीचर 8,000 माइनस डेप्रीसिएशन. तो डेप्रीसिएशन कितना है इसका, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर इज, यहाँ पे फर्नीचर की वैल्यू है 8,000 रुपीज़ और इस पे जो डिप्रिसिएशन है वो 10% है. सो 10% ऑफ 8,000 विल बी 800. सो हियर इज द कैलकुलेशन 8,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100. इट वर्क्स आउट टू बी 800. तो क्या करेंगे आप 800 रुपीज़ इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो सब्ट्रैक्टिंग 800 फ्रॉम 8,000 द अमाउंट विच इज लेफ्ट आउट इज 7,200. अब ये जो 800 रुपये जो डिप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं आप, इट इज़ ए लॉस टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बताएंगे आप टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है, इट इज़ 800 रुपीज़. नेक्स्ट we have completed purchases, we have completed furniture, we have completed opening stock. Then we have cash 1,500. It is an asset, it will be shown in balance sheet asset side cash 1,500. तो balance sheet के assets में बताएंगे आप cash, it will be shown as 1,500. Next cash के बाद अपने पास और क्या है, sales returns, this we have subtracted from sales. Next we have wages and salaries.
वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते थे हम, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते थे, बट बोथ द नेम्स आर गिवन टुगेदर। तो पहला नाम क्या दिया हुआ है देखना, वेजेस। सो द एंटायर अमाउंट 4700 विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट टू वेजेस एंड सैलरीज 4700। तो यहाँ पे लिखेंगे आप टू वेजेस एंड सैलरीज एंड द अमाउंट विल बी टेकन एज 4700। नेक्स्ट, आफ्टर वेजेस एंड सैलरीज वी हैव रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस 3600। It is recorded on debit side of profit and loss account to rent, rates and taxes 3600। तो यहाँ पे लिखेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस 3600। नेक्स्ट, आफ्टर रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस वी हैव सन्ड्री डेटार्स। सन्ड्री डेटार्स किसको बोलते हैं, जिन लोगों से बिजनेस को पैसे आना है। डेटार्स किसको बोलते हैं, जिन लोगों से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पैसे आना है। कितने पैसे आना है, 13,500 आना है। इट इज एन एसेट, it will be recorded on asset side as sundry debtors and the amount will be recorded here as 13,500। तो आप इसमें अमाउंट लिखेंगे 13,500। अब इस पे एडजस्टमेंट है, देखिए बैड डेट्स 1500, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5%। तो पहले आप क्या करेंगे, ये बैड डेट्स 1500 सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट 1500 बैड डेट्स विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टोटल डेब्टर्स 13,500। तो इसमें से पहले आप क्या करेंगे, बैड डेट्स के 1500 सब्ट्रैक्ट करेंगे। देन द वैल्यू दैट इज लेफ्ट आउट विल बी 12,000। 13 minus 1 12, 500 minus 500 it becomes 0। फिर अपने को प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी कैलकुलेट करना है, विच विल बी कैलकुलेटेड ऑन 12,000। तो यहाँ पे जो है ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का जो अमाउंट है वो कितना है, इट इज 12,000। मतलब ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कैलकुलेट करेंगे आप, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग बैड डेट्स फ्रॉम डेब्टर्स द वैल्यू विच इज लेफ्ट आउट ऑन दैट अमाउंट विल बी कैलकुलेटिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स विच इज गिवन एज 5%। सो 10% ऑफ 12,000 इज 1200, whereas 5% will be 1600। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, इसमें 5% will be 600। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, 600 will be subtracted as provision for bad debts। तो अब ये 12,000 में से आप 600 रुपये सब्ट्रैक्ट करें तो क्या पैसे बच रहे हैं आपके पास, द अमाउंट विच इज लेफ्ट आउट इज 11,400। अब आप क्या करेंगे, ये जो बैड डेट्स है 1500 रुपये जो डेब्टर्स में से सब्ट्रैक्ट करें, और ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट 600 जो सब्ट्रैक्ट करें, ये दोनों को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में बताएंगे। उससे पहले अपने को क्वेश्चन में कुछ बैड डेट्स दिया हुआ है, क्या देखिए, हियर बैड डेट्स इज गिवन एज 1000 रुपीज। सो फर्स्ट दिस विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आप बताएंगे बैड डेट्स कितना दिया हुआ है, 1000 रुपीज। सो फर्स्ट दिस 1000 रुपीज विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। तो पहले आप ये ट्रायल बैलेंस के बैड डेट्स बताएंगे, फिर ऐड फर्दर बैड डेट्स। तो आपका जो एडजस्टमेंट का जो बैड डेट्स था वो 1500 था। सो द टोटल अमाउंट विल बी 2500। सो बैड डेट्स का जो टोटल अमाउंट रहेगा वो कितना है, इट इज 2500। फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना आया था आपको, 600 रुपीज। नेक्स्ट, आफ्टर सन्ड्री डेब्टर्स वी हैव मशीनरी 5400। इट इज एन एसेट। मशीनरी पे कुछ एडजस्टमेंट है, we don't have any adjustment on machinery। so machinery की वैल्यू क्या है, it is given as 5400। so 5400 will be recorded on asset side। तो यहाँ पे बताएंगे आप मशीनरी 5400। next, after machinery we have investments 8000। it is an asset, so investment 8000 will be recorded in balance sheet asset side as investments and the amount will be shown as 8000 rupees। सो इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट कितना है, इट इज 8000 रुपीज। नेक्स्ट, आफ्टर इन्वेस्टमेंट्स वी हैव डिस्काउंट 1100 ऑन डेबिट साइड एंड डिस्काउंट 3600 ऑन क्रेडिट साइड। तो जो डिस्काउंट डेबिट में दिया हुआ है वो डेबिट में लिखेंगे, जो डिस्काउंट क्रेडिट में दिया हुआ है वो क्रेडिट में लिखेंगे। 1100 विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड 3600 विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरफ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जो डिस्काउंट है वहां पे लिखेंगे आप 1100, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जो डिस्काउंट है उस तरफ लिखेंगे आप 3600। सो हियर द अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड एज 3600। नेक्स्ट, आफ्टर डिस्काउंट वी हैव कैरिएज 600 रुपीज। इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे आप कैरिएज 600 रुपीज। तो यहाँ पे कैरिएज इट विल बी रिकॉर्डेड एज 600 रुपीज।
Next, after carriage we have trade expenses 700 rupees. It will be recorded on debit side of profit and loss account. Trade expenses 700 rupees. तो profit and loss account के debit में लिखेंगे trade expenses 700 rupees. Next, after trade expenses we have, उससे पहले क्या था, commission 1300 है. So commission 1300 will be recorded on debit side of profit and loss account. Commission 1300. So 1300 commission will be recorded on debit side of profit and loss account. Then after trade expenses we have stationery 1000 rupees. तो stationery जो है ये profit and loss के debit में बताएंगे आप. To stationery 1000 rupees. Next, after stationery we have factory rent 1600. It will be shown on debit side of trading account. इस पे adjustment है, देखिए outstanding factory rent 400. तो यहाँ पे बताएंगे आप trading account के debit में first the factory rent will be shown as 1600. और इस पे जो एडजस्टमेंट है वो आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट 400 है, मतलब 1600 रुपये 1600 रेंट पे कर दिए आप और 400 पे करना है. सो द टोटल फैक्ट्री रेंट विल बी 2000 रुपीज़. तो अब इसमें से आपको और कितने पे करना है, 400 रुपीज़ पे करना है. सो इट विल बी शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट 400 रुपीज़. तो इस तरफ बताएंगे आप आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट लायबिलिटी में 400 रुपीज़ बताएंगे. नेक्स्ट, आफ्टर फैक्ट्री रेंट वी हैव कोल एंड गैस. So it will be recorded on debit side of trading account. Coal and gas 2200. तो trading account के debit में बताएंगे आप 2200. Then we have interest on capital. It is an expenditure. What is capital? The amount which has been invested by the owner into the business is called as capital. And as the amount of capital is being used by the business, it is the amount which belongs to the owner and it is being used in the business. So business will be paying interest on capital to the owner. तो यहाँ पे ओनर का पैसा बिजनेस इस्तेमाल कर रहा है, इस वास्ते बिजनेस ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगा. इट इज एन एक्सपेंडिचर टू द बिजनेस. सो इट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3000 रुपीज़. तो यहाँ पे बताएंगे आप टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3000 रुपीज़. नेक्स्ट, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी हैव बैड डेट्स. दिस ऑलरेडी वी हैव रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ profit and loss account. Next we have goodwill. Goodwill is an asset to the business organization. It will be shown on asset side 10,000. Accrued dividend, it is also an income. It will be shown on asset side of the balance sheet. So goodwill 10,000 और accrued dividend 1400 both will be shown on asset side of balance sheet. तो goodwill के 10,000 भी आप assets में बताएंगे और साथ साथ accrued dividend के 1400 भी आप assets में बताएंगे. So goodwill 10,000 will be shown on asset side as well as accrued dividend. मतलब dividend earn कर लिए आप but अभी कैश रिसीव नहीं करें. So now we have completed all the debit balances given in the question. Now let us have a look on credit balances of the question. Capital 40,000. What is capital? The amount that has been invested by the owner into the business is called as capital, and always capital is a liability to the business organization. So capital 40,000 will be shown on liability side of the balance sheet. तो balance sheet के liability में बताएंगे आप capital 40,000. Next, after capital we have बिल्स पेएबल. बिल्स पेएबल का मतलब ये बिल के जो पैसे है 2500 आपको पे करना है. इट इज ए लायबिलिटी. सो इट विल बी शोन ऑन लायबिलिटी साइड एज बिल्स पेएबल 2500. तो इस तरफ बताएंगे आप बिल्स पेएबल 2500. कैपिटल का जो अमाउंट है वो हम इनर कॉलम में इस वास्ते लिखे, अपने को प्रॉफिट एंड लॉस का जो आंसर आएगा, अगर प्रॉफिट आया तो ऐड करेंगे हम, लॉस आया तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो देयर विल बी सम एडजस्टमेंट्स दैट नीड्स टू बी डन in capital account. So the amount of capital will always be shown in inner column. Next, after bills payable we have creditors 5900. So creditors किसको बोलते हैं? जिन लोगों को बिजनेस पैसे पे करना है. It is a liability, so it will be shown on liability side. Creditors 5900. It will be shown on liability side of the balance sheet. Creditors will be shown as 5900. Next, after creditors we have interest received 1500. Interest received, it is an income. It will be shown on credit side of profit and loss account. इस पे adjustment है, देखिए interest received in advance 500. मतलब ये जो 1500 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, इसमें से 500 रुपये आप एडवांस में रिसीव करे हुए हैं. सो इट विल बी सब्ट्रैक्टेड. तो फर्स्ट इंटरेस्ट रिसीव 1500 विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो पहले तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में इंटरेस्ट रिसीव्ड 1500 बता देंगे. अब इसमें से जो 500 रुपये एडवांस में रिसीव करें आप, दैट अमाउंट विल बी सब्ट्रैक्टेड.
सो 1500 में से अगर आप 500, व्हेन यू आर सब्ट्रैक्टिंग 500 फ्रॉम 1500, द अमाउंट विच इज लेफ्ट आउट इज 1000 रुपीज़। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब क्या, आप वक्त से पहले किसी से पैसा ले लिए। सो जब आप किसी से वक्त से पहले पैसा ले रहे, देन यू आर लेबल टू हिम, वो बंदे का वो काम करना आप पे खर्च बन जाता। सो इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस विल बी शोन इन लायबिलिटी साइड अगेन। कितना रिसीव कर रहे हैं आप एडवांस में, 500 रुपये। सो 500 विल बी शोन एज इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस एंड लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो यहाँ पे बताएंगे आप 500 रुपीज़। नेक्स्ट, after interest received we have sales 28,500. This we have recorded on credit side of trading account. Then purchases returns 400 we have subtracted on debit side of trading account from purchases 12,400. Next we have commission 4,500. ये अमाउंट क्रेडिट में दिया हुआ है तो क्रेडिट में लिखेंगे, और जो कमीशन इस तरफ डेबिट में दिया हुआ था वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखे। अब जो कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में दिया हुआ है वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे, कमीशन 4,500। तो यहाँ पे बताएंगे आप कमीशन 4,500। Next, after commission we have discount 3,600. So है, ये ऑलरेडी हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिख दिए। जो डिस्काउंट प्रॉफिट एंड डेबिट में दिया हुआ था 1100, वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखे। जो डिस्काउंट क्रेडिट में दिया हुआ है वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखे। नेक्स्ट वी हैव मिसलेनियस इनकम। मिसलेनियस इनकम, इट इज़ एन इनकम। अब ये एंड दिस इनकम विल बी, अगर ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर रहता तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बताते थे, बट एज इट इज़ ए मिसलेनियस इनकम इट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ profit and loss account. So it will be shown as by miscellaneous income 3,200. So the amount will be shown here as 3,200. Now we have completed all the items of debit balances and credit balances which are given in the question, as well as we have completed all the adjustments. Let us have a look. Closing stock 10,500. It was recorded first on credit side of trading account. Then we have shown closing stock as assets in balance sheet. Next, after closing stock, we had an adjustment, bad debts 1500, provision for bad debts 5%. First, we have subtracted 1500 from debtors, 13,500 in balance sheet. Then the amount which is left out is 12,000, from which we have calculated provision for 5%, which works out to be 600. Then we have subtracted bad debts 1500 from 13,500 first. Then we have subtracted 600 from 12,000 first. Then we have recorded bad debts 1500 and 600 on debit side of profit and loss account. Coming to third adjustment, we have added factory rent 400, outstanding factory rent 400 to factory rent 1600 in trading account. Then outstanding factory rent has been shown as liability in balance sheet. Then after third adjustment, what is the fourth adjustment given? Depreciation on furniture 10%. This we have subtracted from the value of furniture on asset side of the balance sheet. Then the amount of depreciation has been shown on debit side of profit and loss account. Then what is the fifth adjustment? Interest received in advance. It has been subtracted from interest received amount 1500. Then it has been shown as liability in balance sheet. Now we are left out with one more and last adjustment, that stock worth rupees 10,000 has been destroyed in fire. आग लगने की वजह से 10,000 का सामान का नुकसान हो रहा. So first this loss will be recorded on credit side of trading account as by goods lost in fire. कितने का सामान जल रहा? 10,000 का सामान जल रहा. अब इसके बाद कंटिन्यूएशन क्या दिया हुआ है? इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ए क्लेम ऑफ रुपीज 7,500. मतलब आप ये सामान का इंश्योरेंस कराए हुए थे, तो जो सामान जल रहा वो 10,000 का सामान जल रहा. अब इंश्योरेंस क्लेम जब आप अप्लाई करें, जब आप इंश्योरेंस क्लेम के लिए अप्लाई करें, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको सिर्फ 7,500 रुपये देते बोल रही. तो यहाँ पे जो 7,500 है, इट विल बी शोन ऑन असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज इंश्योरेंस क्लेम 7,500. इंश्योरेंस क्लेम 7,500. तो अब जो सामान जला वो 10,000 का सामान जला, इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा आ रहा वो 7,500 का अमाउंट आ रहा. तो टोटल जो लॉस हो रहा आपका, आफ्टर गेटिंग एन इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 7,500, स्टिल यू आर सफरिंग ए लॉस ऑफ 2,500 रुपीज, विच विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज 2 गुड्स लॉस्ट इन फायर 2,500. तो इस तरफ बताएंगे आप 2 गुड्स लॉस्ट इन फायर 2,500 रुपीज. तो यहाँ पे जो सामान जल रहा वो 10,000 का सामान जल रहा, बट इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा आ रहा वो सिर्फ 7,500 आ रहा. तो ये चीज़ कैसा बताया आप? सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जितना भी सामान जल गया वो वैल्यू बताएंगे, बाई गुड्स लॉस्ट इन फायर 10,000 रुपीज़. फिर इंश्योरेंस कंपनी से जो भी अमाउंट आ रहा वो बैलेंस शीट के एसेट्स में बताएंगे एज इंश्योरेंस क्लेम 7,500. अब कंपेयर करिए, 10,000 का सामान जला था, 7,500 रुपये आए, तो और लॉस कितना बाकी है?
2500 का लॉस बाकी है, अब ये पैसे आने वाले नहीं है. सो इट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज 2 goods lost in fire 2500. Now we have completed all the items of debit balances and credit balances given in the trial balance, as well as we have completed all the adjustments. We just need to balance the trading account, profit and loss account and balance sheet. So how do we balance it? First we'll be doing the total on debit side of trading account and credit side of trading account. First let us do the total on credit side of trading account. 10,000 plus 10,000, 20,000, 20,000 plus 20, 40,000, 40 plus 7, 47 plus 500, 47,500. So on credit side the total is 47,500. Now let us do the total on debit side of trading account. 2,000 plus 2,000, 4,000, 4 plus 4, 8,000, 8 plus 2, 10,000, 10 plus 10, 20,000, 20 plus 7, 27,000, 27,000, 27 plus 6, 27,600 plus 6, 28,200, 28,200 plus 7, 28,900. So the total on debit side is 28,900. Credit side is 47,500. 28,900 and 47,500. 47,500 जो है ये क्रेडिट का टोटल है, 28,900 जो है ये डेबिट का टोटल है. सो दोनों में कौन सा अमाउंट ज़्यादा है? 47,500 ये ज़्यादा है. So 47,500 will be recorded on both the sides of trading account. 47,500, 47,500. अब आप क्या करेंगे? हायर वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे. 47,500 में से क्या करेंगे आप? 28,900 माइनस करेंगे. सो 40 में से पहले 20 माइनस कर दीजिए, 20,000 बचते. फिर 7 में से 8 माइनस करना है आपको, तो और 1,000 निकालना है, तो 20 माइनस 1 19,000. फिर आपको 500 में से 900 निकालना है, तो और 400 रुपये बचते. सो subtracting 400 from 19,000 will be left out with 18,000. तो यहाँ पे जो टोटल आ रहा 47,500 क्रेडिट साइड का है. Let's have a look on debit side again. 2,000 plus 2,000, 4,000, 4 plus 4, 8,000, 8 plus 2, 10,000, 10 plus 10, 20,000, 27,000, 27,600, 28,200, 28,900. So here the total is 28,900. So 15 minus 9, it will be 600. 15 minus 9, 600. So here it will be 600. Then 16 minus 8, it will be 8. 3 minus 1, 3 minus 2, it will be 1. तो अपने को जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा वो 18,600 है. Let us do the total once again. The total on credit side of trading account is 47,500, but the total on debit side is 12 plus 7, 19,000, 19 plus 4, 23,000, 23 plus 2, 25, 25 plus 2, 27,000, 27,200, 27,800, 27,800, 28,500, 29,100. तो यहाँ पे हम टोटल गलत करें. डेबिट साइड द टोटल इज 29,100. तो इस तरफ लिखेंगे आप 29,100. तो आप इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करिए. 5 minus 1 it will be 400. फिर 17 minus 9 it will be 8. 3 minus 2 it will be 1. तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा अपने को कितना आ रहा है? 18,400 आ रहा. तो अपने को ये जो 18,400 कम पड़ रहे वो किधर कम पड़ रहे? डेबिट साइड कम पड़ रहे, विच विल बी रिकॉर्डेड हियर एज 18,400. तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा हम उसको क्या लिख रहे? टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 18,400 लिख रहे. ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. द सेम विल बी ब्रॉट डाउन ऑन ऑपोजिट साइड एज बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, विच विल बी रिकॉर्डेड हियर एज 18,400. नाउ विल बी बैलेंसिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब इसका टोटल करिए आप. 18 plus 1 19, 19 plus 4 23, 23 plus 3 26, 26 plus 3 29, 29,000 plus 1,000 30,000, 30,000 plus 700. The total on credit side of profit and loss account is 30,700. तो क्रेडिट साइड इसका टोटल है 30,700. अब डेबिट साइड इसका टोटल करिए. फर्स्ट वी हैव 2,000 plus 3,000, 5,000, 5,000 plus 1,000 6,000, 6,000 plus 1,000 7,000, 7 plus 1 8,000, 8 plus 1 9,000, 9,000, 9,700, 10,200, 10,700, 12,700,
13,500, 14,100, 15, 16, 17,100। तो इस तरफ का जो आंसर है वो 17,100 है। सो डेबिट का जो आंसर है वो 17,100 है, 17,100 है। और क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो 30,700 है। तो दोनों में कौन सा ज़्यादा है? 30,700 ज़्यादा है। तो बोथ द साइड्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द टोटल विल बी रिकॉर्डेड एज 30,700, 30,700। अब आप क्या करेंगे? ये 30,700 में से ये 17,100 माइनस करेंगे। 700 माइनस 100 इट विल बी 600। फिर इस तरफ 10 माइनस 7 इट विल बी 3, 2 माइनस 1 इट विल बी 1। तो यहाँ जो अमाउंट बच रहा, क्या बच रहा आपको? 7 माइनस 1 इट विल बी 600, 10 माइनस 7 इट विल बी 3, एंड यहाँ से बारो करने की वजह से 3 बिकम्स 2, 2 माइनस 1 अगेन इट विल बी 1। तो अपने को जो नेट प्रॉफिट आ रहा वो कितना आ रहा? 13,600 आ रहा। तो इस तरफ लिखेंगे आप नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन 13,600 विच विल बी रिकॉर्डेड एज ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। तो अब अगर अपने को आंसर में प्रॉफिट आ रहा, दिस विल बी एडेड टू कैपिटल। तो अपने को कैपिटल की वैल्यू 40,000 है, इस पे आप नेट प्रॉफिट क्या करेंगे? ऐड करेंगे 13,600। So 13,600 has been added here. So 40 plus 13 it is 53,600. तो इस तरफ लिखेंगे आप 53,600। 53,600 plus 4 54, 55, 56, 56, 57, 58, 59, 60, 62,900। तो बैलेंस शीट का जो टोटल आ रहा है लायबिलिटी साइड इट इज 62,900। नाउ विल बी डूइंग द टोटल ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। 10,500 plus 500 11,000, 11 plus 7 18,000, 18 plus 1 19,000, 19 plus 10 29,000, 29 plus 8 37,000, 37 plus 1 38, 38 plus 10 48, 48 plus 5 53, 53, 53 plus 7 60, 60 plus 1 61, 61 plus 700 61, 700 62 100, 62 500, 62 900. So the total on asset side of the balance sheet is also 62,900. So here we got gross profit as 18,400 and net profit as 13,600, and the total on balance sheet of liabilities and asset side is 62,900, 62,900. Hope you have understood the topic and hope you have liked my video. If you like my video, do subscribe to my channel AIMS Tutorial for Accounts, and if you are a new subscriber to my channel, don't forget to press the bell icon for further notifications. Do like my video, post your valuable comments, and do share it with your friends, relatives and all. Your one share can help someone to learn something. See you all in next video. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.